Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Students of class 8, today we are going to again continue with chapter 10, direct and inverse variations. Okay, and today's part is part 2. Those who have not watched the previous part, that is part 1, that is introduction 1, I will suggest you to watch that part, because in that part I have taught you the concept of this chapter, direct and inverse variation. And after having a nice knowledge, a good knowledge on direct and inverse variation, then it will be easy for you to solve the exercise sum. Okay, I have shared the link at the end of the video, so you can check it out there, or you can see the playlist and then watch it and then watch this second part. Now today we are going to begin with exercise 10.1. Okay, so let us see what they are telling us in the question. If x varies directly with y. So directly in the question only they have told that x varies directly with y. Then find the values of x2 and y3. So in the table, so this is the table given. You have to find out this x2 is how much and you have to find out this y3 is how much. Okay, so how we will start? We will begin. Already we have done one example also. So what I will write here, if I start the answer here, we will write this sentence here: x varies directly with y. So already told x varies directly with y. So what I can write? So like this only we did in our previous part also. X by y is equal to k. We will take it as a constant, and then in the bracket we will write constant. Clear? Now what I will write, from the given table, you have the table. Okay, from the given table means ये वाला टेबल. ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे x varies directly with y, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है. उसके बाद x by y क्या होगा? कांस्टेंट होगा, k लिखेंगे. उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्रॉम द गिवन टेबल, ये जो टेबल दिया है यहां से हम निकल आएगा क्या? k का वैल्यू. तो k क्या होगा? देखो इधर में 3/45 है, तो ये लिख देंगे 3/45. तो इतना तक तो समझ में आ गया. अभी हम लोग क्या करेंगे? यही चीज इसमें डालेंगे, बिकॉज द रेशियोज आर, आई टोल्ड यू, सेम मीन्स 3/45. द रेशियोज आर सेम मीन्स ये एक तो रेशियो हो गया 3/45, और दूसरा वाला क्या हो गया? x2/60, और तीसरा वाला क्या हो गया? 9/y3. तो ये सब रेशियो इक्वल है. ठीक है, तो फ्रॉम द गिवन टेबल आई गॉट k इक्वल टू 3/45. सो नाउ उसके बाद क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन, x2/60 इक्वल टू 3/45. ठीक है, हमको x2 निकालना है, तो x2 चेंज नहीं होगा, उसका जगह में ही बैठा रहेगा, और 3/45 एज इट इज रहेगा, वो भी अपना जगह में. 60 नीचे है डिवाइड, ये उधर जाने से क्या होगा? इट विल बिकम मल्टीप्लाई एंड इट विल गो अप. सो फ्रॉम 60 दिस 60 विल गो अप. ओके, सो इनटू 60. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको काटा काटी करेंगे. सो 3 1s are 3, और here what it will be? 3 1s are 3, 1 extra, so 15. 3 5s are 15. ठीक है, अभी हम लोग 60 ऊपर है, 15 नीचे है, और काटेंगे. ठीक है, 5 3s are 15, सो इधर में 5 1s are 5, 1 एक्स्ट्रा, सो 10, सो 5 2s are 10. अभी हम लोग इसको और काटेंगे. 3 1s are 3, 3 4s are 12. सो आ गया हम लोग का x2 इक्वल टू 1 इंटू 4 4, और नीचे का 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो आ गया x2 इक्वल टू 4. अभी उसके बाद हम लोग ऐसे ही किए थे. ओके, तो ये हो गया. ठीक है, ऑल्सो और एक तो चीज निकालना है, दैट इज द सेकेंड वन. ओके, ये सेकेंड केस है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 9/y3. सो 9/y3
y3 इक्वल टू 3/45। ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y3 इंटू 3 इंटू y3, और ये हो जाएगा 9 इंटू 45। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, y3 इसको ही निकालना है, तो ये एज इट इज रहेगा। ओके, और ये 3 है इंटू 3 इंटू y3, so 3 into means multiplication, when it goes that side it will become divide। so आ गया। अभी इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया, y3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 3, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 13, तो आ गया 135। ठीक है, अभी जैसे ही हम लोग को आ गया, अभी हम लोग लिख सकते हैं, तुम लोग इधर में लिखना। ठीक है, मैं इधर में लिखता हूं, हेंस x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड और दूसरा वाला क्या है, y3 इक्वल टू 135, और ये आ गया हम लोग का आंसर। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is telling what? Raj bought 35 packs of crayons for rupees 700. Roy bought 7 packs of the same crayons. How much did Roy pay? मतलब राज 35 पैक्स खरीद रहा है 700 रुपया में, रॉय वही सेम क्रेयॉन्स खरीद रहा है मगर कितना पैकेट, 7 पैकेट, तो उसके लिए रॉय कितना पे कर रहा है। तो इधर में हम लोग को टेबल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। सो टेबल ड्रॉ करने के लिए सिंपल पेन से ऐसा कर दो, ठीक है, और उसके बाद ऐसा कर दो। तो इधर में क्या है, 35 पैक्स ऑफ क्रेयॉन, सो नंबर ऑफ क्रेयॉन पैक्स, ओके, और पैकेट्स, ठीक है, तो इसको बना देंगे क्या, x, ठीक है, और उसके लिए कितना पेमेंट कर रहा है, 700 रुपया, तो वो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट, क्रेयॉन्स कर सकते हैं, ओके, क्रेयॉन पैक्स ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये रुपीस में होगा, और इसको बना देंगे y, तो नंबर ऑफ क्रेयॉन पैक्स है x और टोटल कॉस्ट है y। सो अभी इसको वो 35 पैक्स खरीद रहा है, कितना पेमेंट कर रहा है, 700, और उसके बाद रॉय कितना खरीद रहा है, 7 पैक्स, ओके, 7 पैकेट्स, तो रॉय कितना पेमेंट करेगा, तो इसको बना देंगे, ये y है तो इसको बना देंगे सपोज y1, ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इसका रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट और डायरेक्ट है या इनवर्स है। इनवर्स तो हम लोगों ने अभी तक सिखा ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट है। कैसे डायरेक्ट है, देखो इधर में 35 पैकेट्स खरीद रहा है, 700 रुपया दे रहा है, 7 पैकेट खरीदेगा तो कम देगा, मतलब ज्यादा पैकेट तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, कम पैकेट तो कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, देखो मैंने तुम लोगों को सिखाया था एरो मार्क देकर, ज्यादा पैकेट, ठीक है, एरो मार्क ऊपर जा रहा है तो पेमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। फिर उसके बाद देखो कम पैकेट खरीदेगा तो कम पेमेंट करेगा, सो डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हियर द लेस, or we can write directly less only, here less the number of crayon packs, okay, here less the number of crayon packs, the less would be the total cost, okay। और अच्छा से तुमको लिखना है तो हेयर लेस द नंबर ऑफ क्रेयॉन पैक्स, उसको तुमने क्या लिया है, x लिया है, कॉमा लेस वुड बी द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तुमने क्या लिया है, y। सो दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो ये क्या केस है, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। पहले हम लोग ये नहीं लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, x varies directly with y, ठीक है। सो लाइक दैट वी आर राइटिंग, बट हियर तो दे हैव टोल्ड
नंबर ऑफ क्रेयॉन पैक्स और टोटल कॉस्ट, इन दोनों का रिलेशन क्या है वो हम लोग ने लिखा है, डायरेक्ट वेरिएशन। अभी जैसा हम लोगों ने किया है वैसे ही करेंगे। सो व्हाट वी विल राइट, सो हियर x बाई y इज इक्वल टू k, और k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम द टेबल, ओके। सो फ्रॉम द टेबल अबव, तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा। k का वैल्यू क्या होगा, 35/700। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर हम ऐसा ही रख देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इधर में करते हैं, इसके बाद हम लोग इधर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको ये निकालना है y1। सो नाउ 7/y1 इज इक्वल टू ये वाला होगा 35/700, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई y1 इंटू 35, सो 35 इंटू y1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 700, और उसके बाद y1 इज इक्वल टू 7 इंटू 700 बाई 35, ठीक है। अभी काटाकाटी करने से ही आंसर आ जाएगा। देखो y1 इक्वल टू, ये दोनों काटेंगे, सी इधर में 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, क्लियर। अभी इसको और इसको काटेंगे, सो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 एक्स्ट्रा 20, सो 5 4 ज़ा 20, सो 0, तो कितना आ गया 140, ठीक है। सो हाउ मच डिड रॉय पे, सो हेंस रॉय पेड, कितना पेड कर रहा है, ₹140 फॉर हाउ मेनी पैकेट्स, फॉर 7 पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स, ठीक है। ये आ गया हम लोग का आंसर। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। इफ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज ₹90, then how much rice can be purchased with ₹247.50? So here chart is not given, so first I will make the chart. So to make the chart I will draw the box, okay, and then you can see 4 kg of rice, ये क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी ऑफ राइस, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे kg, बिकॉज इट इज बीन डिनोटेड बाय kg, ठीक है। और इसको बना देंगे क्या, x, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना रुपया पे कर रहा है, टोटल कॉस्ट वो है रुपीस में, तो इसको कर देंगे y। तो क्या हो गया, जब 4 kg खरीद रहा है तब कितना पेमेंट कर रहा है, 90 रुपीस, और जब 247.50 मतलब ज्यादा पैसा पे करेगा तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ राइस मिलेगा। देखो ज्यादा पैसा देगा मतलब एरो मार्क इज ऑन टॉप, ओके। सो ज्यादा पैसा देगा तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ राइस मिलेगा। सो क्या ये क्या वेरिएशन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो उसमें इधर में कितना मिलेगा, कितना, तो ये हम लोग कर देंगे x और 1 लिख देंगे, बाकी ये पार्ट को रब कर देंगे, ठीक है। हम लोग का चार्ट रेडी। सो व्हाट वी विल राइट हियर, हियर more the quantity of rice, that means x, the more would be the total cost, ठीक है, the more would be the total cost, clear। So this is a case of direct variation आ गया। सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अभी हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सो x बाई वाई इज इक्वल टू k, तो क्या k हो जाएगा, कांस्टेंट, फ्रॉम द अबव टेबल k का वैल्यू क्या होगा, 4/90, 4/90, तो k का वैल्यू आ गया 4/90। अभी हम इसको निकालेंगे, तो उसके लिए इधर में करते हैं, ठीक है।
तो नाउ x1 बाई 247.50 पॉइंट को अच्छे से लिख रहे हैं, तो ये क्या है 4/90। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, x1 निकालना है, उसको ऐसे ही रख देंगे 4/90 इंटू 247.50। क्लियर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको काटाकाटी करेंगे। तो काटाकाटी करने से पहले 4/90 इंटू, ये देखो पैसा में हम लोग, इधर में पॉइंट है ना, तो पैसा है, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए 24750 बाई 100। वाई 100? बिकॉज हियर 2 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आ दिया, सो 100 आएगा। अभी ये जीरो कट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग काटेंगे। कैसे काटेंगे ना, 2 ज़ा 4 और इसको काटने से क्या होगा, 2 4 ज़ा 8 1 2 5 ज़ा 10। अभी फिर इसको काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अभी ये बचा है और नीचे में ये दोनों बचा है, तो चलो लिखते हैं 2475 और इधर में 45 इंटू 5। सो सिंपली 5 से काटेंगे। ठीक है, सो 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 4 लेफ्ट, छोटा सा 4 लिखेंगे तो 47 हो गया। 5 9 ज़ा 45 और 2 एक्स्ट्रा 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अभी इसको फिर से काटेंगे। ठीक है, 5 से 5 क्या 5 9 ज़ा 45 और इसको फिर से 5 से, सो 5 9 ज़ा 45 अगेन 4 5 9 ज़ा, सो 99 कितना आ गया 99/9 और इसको काटने से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो आ गया 11। ठीक है, तो हाउ मच राइस कैन बी परचेस्ड with rupees 247, therefore or hence 11 kg of rice can be purchased. 11 kg of rice can be purchased with rupees 247.50। ठीक है, तो इसको लिख देंगे आंसर। समझ में आ गया। Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like my channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the now we will come to question number 4. So let us see what they are telling. If x varies directly with 5y and x equal to 15 when y is equal to 75, find the value of y when x is equal to 7. तो ये है सम, ये है बहुत बढ़िया सम है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले ही बोल दिया है, हेयर x वैरीज, अच्छा से समझो, वैरीज डायरेक्टली विथ 5y। ठीक है, मतलब x वैरीज डायरेक्टली विथ 5y मीन्स व्हाट, x बढ़ रहा है। ठीक है, इफ x बढ़ेगा तो y भी कितना बढ़ेगा 5y, दैट मीन्स 5 गुना बढ़ेगा। ठीक है, so what we can write here, so x by 5y, अभी x by y नहीं लिखेंगे, x by 5y। ओके, और इसको कर देंगे क्या k। ठीक है, तो k क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट इज k, k इज अ कांस्टेंट, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। मगर पहले वाला सम में क्या लिखते थे, x by y, मगर इधर में लिखेंगे x by 5y। वाई, बिकॉज हेयर x varies directly with y। नो, जब x varies directly with y, then x by y। अभी इधर में क्या है, x varies directly with 5y, so that's why x by 5y is equal to k। तो यहां से थोड़ा हट के, पहले वाला सम जैसा नहीं है, तो x इक्वल टू k इंटू 5y और इसको कर देंगे इक्वेशन 1।
एक्चुअली ये कैसे आता है वो भी मैं सिखा देता हूं बाद में। तुम लोग जब क्लास 9-10 में जाओगे तो x वैरीज, सो x वैरीज डायरेक्टली विथ y, द सिंबल इज लाइक दिस वे, वैरीज, ओके, दैट इज x वैरीज व्हाट, डायरेक्टली विथ 5y। अभी x ये सिंबल हटाने के लिए, दैट मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5y, ये सिंबल को हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। मगर ये तभी पॉसिबल है जब एक तो कांस्टेंट लेकर आएंगे, तो इधर में कांस्टेंट मैंने k लेकर आया, तो k इंटू 5y, तो ऐसा करके ये वाला आया है। मगर ये सब तुम लोग को करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हाउ यू आर डूइंग द सम, बट लिटिल चेंजेस आर देयर, सो यू डू लाइक दिस वे ओनली, क्लियर नो। सो x इज इक्वल टू k इंटू 5y। अभी देखो अभी क्या है, एंड x इक्वल टू 15 व्हेन y इज इक्वल टू 75, तो ये हो गया केस 1, हम लोग इसको केस 1 करेंगे, ओके। सो व्हाट आई विल डू, पुटिंग x इज इक्वल टू 15 व्हेन y इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये इक्वेशन में x 15 और y 75 वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल टू k इंटू 5y, तो x कितना है 15 है, k रहेगा, और इधर में 5 इंटू, ओके, y कितना है 75, समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 5 इंटू 75 इधर लेकर आ जाएंगे, तो 15 तो ऐसा ही है, तो 5 इंटू 75 इधर लाने से 5 इंटू 75, क्यों ये आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इधर आने से डिवाइड हो जाता है, तो इज इक्वल टू k, तो यहां से हम लोग काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अगेन 3 1 जा 3, हेयर 3 2 जा 6, so 1 extra, so 15, so 3 5 जा 15, so what you get 1 by 25, 1 by 25 is equal to k। तो उसके बाद हम लोग, मैं आ जाता हूं इधर, ठीक है, तो 1 by 25 is equal to k, तो मैं लिख सकता हूं, उसके बाद इंप्लाई साइन देकर k is equal to 1 by 25, तो k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू कितना है 1 by 25। Now once I get k value 1 by 25, I will put this value again in equation 1. So what I will write? Putting तो लिख दिया, putting मतलब substituting. So substituting k is equal to 1 by 25 in equation EQU, ऊपर में तो n, in equation 1 we get, देखो अच्छे से, ठीक है, तो ये लिखेंगे इक्वेशन 1, x इक्वल टू k इंटू 5y, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x ही रहेगा, k कितना है 1 बाई 25 इंटू 5y, ठीक है। अभी हम लोग इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो x इक्वल टू क्या आ गया 1 इंटू y, और यू कैन से 1 बाई 5y, ठीक है। तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू k इंटू 5y, वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 बाई 5y, तो ये हो जाएगा इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने k का वैल्यू निकाल दिया, वो k का वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई 5 इंटू वाई। अभी आएगा केस 2, इधर में 1 दिया है, इधर में केस 2। अभी केस 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तुमको y का वैल्यू निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 7, सो हम लोग लिखेंगे पुटिंग, ओके, हियर व्हाट वैल्यू वी विल पुट, x इज इक्वल टू 7, ओके, व्हाट द वैल्यू ऑफ y, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो तुम लोग पुटिंग अगर नहीं लिखना चाहते, तुम पहले लिख सकते हो, इधर में केस 2 कर रहे हैं, नाउ
to find the value of y when x is equal to 7, ऐसा भी कर सकते हो. ओके, केस 2 क्या है? नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7. सो उसके बाद तुम लोग लिख सकते हो पुटिंग x इज इक्वल टू 7, ओके, इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो इक्वेशन 2 क्या है? x इज इक्वल टू 1/5 y. ठीक है, तो x कितना है? x हम लोग को दिया है 7 इज इक्वल टू 1/5 y. तो 5 इधर जाने से क्या होगा? 7 इंटू 5, और y ऐसा ही रहेगा, 1y मीन्स y ओनली. सो कितना आ गया? 35 इज इक्वल टू y. तो थोड़ा और एक बार इंप्लाई साइन y इज इक्वल टू 35. ये आ गया हम लोग का आंसर. ठीक है, अच्छा से समझ लो. हेयर x वेरीज डायरेक्टली विथ 5y. मतलब अगर x बढ़ेगा तो 5y. ठीक है, इधर में क्या होगा? 5y. x वेरीज डायरेक्टली विथ y. ओके, दैट मीन्स x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, या x घटेगा तो y भी घटेगा. मगर इधर में वैसा नहीं है. x वेरीज डायरेक्टली विथ 5y. x अगर बढ़ेगा तो y भी 5 गुना बढ़ेगा, नहीं तो x अगर घटेगा तो y भी 5 गुना घटेगा. तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? x/5y इज इक्वल टू k लिखेंगे. कांस्टेंट लिख दिया. उसके बाद x ऐसा ही रहेगा और 5y ऊपर आ जाएगा, सो k इंटू 5y. ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1. जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया, अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि यहां से k का वैल्यू निकालना. तो वो कैसे पॉसिबल होगा? केस 1 ऑलरेडी टोल्ड, x इज इक्वल टू 15 जब y 75. तो पुटिंग x इज इक्वल टू 15 व्हेन y इज इक्वल टू 75, यही इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हम लोग को k का वैल्यू आ जाएगा. जैसे ही k का वैल्यू आ गया, वही k का वैल्यू हम लोग फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. पुट करने से x और y का रिलेशन आ गया, उसको बना देंगे इक्वेशन 2. ठीक है, जब इक्वेशन 2 आ गया, उसके बाद हम लोग हाथ लगाएंगे केस 2 में. केस 2 में हम लोग को y वैल्यू फाइंड करना है. x दिया हुआ है 7, तो x 7 का वैल्यू पुट कर देंगे तो y इजीली आ जाएगा. तो मेरा ख्याल से सम नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, इट इज ट्विस्टिंग ऑल्सो. क्लियर? सो अंडरस्टैंड द सम, डू इट नाइसली एंड देन try to practice again and again so that the concept, this sum concept is clear to you. Now we will come to the last sum of this exercise 10.1. So जब भी last sum आता है बहुत खुश होता हूँ कि चलो एक तो exercise complete किया. ठीक है, so what it is telling, if x varies directly with 3y plus 5. देखो ये sum भी जैसा sum number 4 था वैसा ही है, एकदम वैसा. ठीक है, x वेरीज डायरेक्टली विथ 3y. तो हम लोग लिखेंगे हेयर x वेरीज डायरेक्टली. देखो दोनों सम एक ही टाइप का दिया है. x वेरीज डायरेक्टली विथ 3y प्लस 5. तो ये दिया हुआ है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हेयर x बाय 3y प्लस 5 इज इक्वल टू k, और इसको कर देंगे कांस्टेंट. और ये 3y प्लस 5 बड़ा है तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देंगे. ठीक है, अभी क्या करेंगे? x इक्वल टू k इंटू 3y प्लस 5, ये इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको बना देंगे इक्वेशन 1. ठीक है, अभी हम लोग केस 1 करेंगे, उसके बाद केस 2 करेंगे. तो केस 1 क्या है? यहां से इतना तक. देखो केस 1, y इज इक्वल टू 5/3 व्हेन x इज इक्वल टू 10. ओके, सो केस 1. ठीक है, तो क्या करेंगे? यही वैल्यू पुट करेंगे. सो पुटिंग y इज इक्वल टू 5/3 व्हेन x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन इक्वेशन 1 वी गेट. ओके, हम लोग को मिल रहा है. कितना मिल रहा है? तो चलो x
इज इक्वल टू के इंटू 3y प्लस 5। देखो पूरा सेम सम जैसा, ओके, एकदम सेम। तो x कितना है, x है 10 इज इक्वल टू के इंटू 3 और y कितना है 5/3, सो 5/3 प्लस 5 हो गया। अभी 3 कट जाएगा तो क्या है 10 इज इक्वल टू के इंटू, नाउ 5 इंटू 1, 3 1 जा 3, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो 1 इंटू 5 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, देखो 5 प्लस 5 10, तो मतलब k इंटू 10। तुम लोग डॉट नहीं लिख सकते तो ऐसा भी लिख सकते हो k इंटू 10। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 10, ये 10 इधर आने से नीचे में आ जाएगा तो k इज इक्वल टू के। अभी इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के, और हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1। तो हम लोग का k का वैल्यू आ गया 1। अभी जब k का वैल्यू हम लोग को आ गया, यही k का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक लाइन, इसके बाद तुम लोग यहां से देखो। ठीक है, तो आई विल पुट दिस वैल्यू, सो व्हाट आई विल राइट, पुटिंग तो मैंने लिखा है, अभी पुटिंग और नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। ओके, k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, हम लोग को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो चलो इक्वेशन 1 लिखते हैं, x इक्वल टू के इंटू 3y प्लस 5। ठीक है, अभी k का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इंटू 3y प्लस 5। तो 1 इंटू दिस में सेम ओनली, x इज इक्वल टू 3y प्लस 5। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 आ गया, अभी हम लोग केस 2 करेंगे, केस 2। तो केस 2 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सो केस 2 इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 36, when x is equal to 36, clear? So what I will write, putting x is equal to 36 in equation, putting x is equal to 36 in equation 2 we get, okay, we will put x is equal to 36 in equation 2, okay, so equation 2 लिखेंगे, x is equal to 3y plus 5। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, y निकालना है। तो ये तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, क्या, देखो हमेशा k is equal to 1, 1 is equal to k आ रहा है, जो तुमको निकालना है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखो, तो इसको घुमा कर भी तुम कर सकते हो। ठीक है, लाइक आई विल शो यू 2 ऑल्टरनेटिव वेज। ओके, फर्स्ट आई विल पुट द वैल्यू 36 इज इक्वल टू 3y प्लस 5, 36 प्लस 5 इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 3y, तो कितना आ गया 31 इज इक्वल टू 3y, और लास्ट स्टेप 31 3 इंटू है, इधर आने से डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो आ गया y। सो व्हाट यू गेट, y इज इक्वल टू 31/3, और ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, और मैं बोल रहा था एक तो आंसर आ गया, मैं बोल रहा था एक तो ऑल्टरनेटिव वे भी कर सकते हो, ये है ऑल्टरनेटिव वे। ठीक है, तो वो क्या है, x इज इक्वल टू, देखो इधर में x इज इक्वल टू 3y प्लस 5, इसको घुमा दो। ठीक है, 3y प्लस 5 इज इक्वल टू x, ओके, सो 3y प्लस 5, x कितना है 36, और अभी 3y इज इक्वल टू 36 माइनस 5, सो 3y इज इक्वल टू 31, चलो y इज इक्वल टू 31/3, सी डायरेक्टली आ गया। तो चाहे तुम ऐसा करो चाहे तुम वैसा करो, ओके, तुम्हारा मर्जी है। ओके, एक तो गाना है ना, मेरी मर्जी, सो विच यू फील गुड यू कैन डू इट इन दैट वे। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 you have understood. 4 and 5 are same type of sum,
So little bit you have to be careful. You have to understand here two cases are there, case 1 and case 2, and what you have to frame the equation. After that you have to find out the value of k, and that k value you have to put it in that equation, and there will be a relation between x and y. Once you get the relation, that is equation 2, then you will take the case 2. Case 2 when you will take, then you will get the value, whichever value. If x is told, you will get the y value. If y is told, you will get the x value. So practice all these sums 1 to 5 nicely, and when you practice nicely in the exam, I hope you will be able to do the sums correctly as well as quickly. Video अगर पसंद